UKV, let's come together to learn. Hello friends, welcome to our YouTube channel EduKV. In this channel you will find interesting and informative videos related to different subjects, career counseling and information related to admission in colleges. So friends, let's start the video. Today we shall study about the topic nutrients, and the topic is components of food. Class 6 and duration is of 30 minutes. Okay friends, as all of you know that in the chapter 1 we made list of the food items that we eat. Now in this chapter there is a concept map regarding different type of the components of food. दरअसल इस चैप्टर में हम डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में और अलग अलग मैप्स में हम मार्क कर पाएँ। जैसे हम चपाती, दाल, ब्रिंजल करी और भी कई तरह के फूड आइटम्स हैं जैसे राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन, लेडी फिंगर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और इनमें अलग अलग तरीके के फूड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे इसी चैप्टर में कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फूड जो होते हैं किसको किसको कंटेन करते हैं। हम इस चैप्टर के बाद आप क्या जानोगे? You will define the food or nutrients. You will be able to define food or nutrients. You will be able to distinguish between different components of food. इस चैप्टर के बाद आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, एंड you will be able to know about the different sources of different components of food and know about the different functions of different components of food. इसके अंदर हम डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस का यूज़ किया गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है व्हाट इज़ फूड। फूड क्या है? व्हाट इज़ फूड? तब हम आगे बढ़ पाएंगे कि इसके बारे में हम कुछ पता लगा पाएंगे कि फूड आखिर होता क्या है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल define food. As all of you know that food is a nutritious substance that people or animal eat or drink, or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food. It is also known as nutrients. इसी फूड को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं सारे, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारे फूड भी हैं। ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हैं जिन्हें पीपल, एनिमल या तो खाते हैं या पीते हैं, या फिर प्लांट्स जो हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फूड क्या क्या होता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई। वंस अगेन, food is a nutritious substance that people or animals eat or drink, or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food, and it is also known as nutrients. Now next one is that what are the components of food? As all of you know, there are various components of foods are such as carbohydrate, another one is the protein, then third carbohydrate, next one is the protein, third one is the fat, vitamins or vitamins, in either way you can pronunciate it, and then minerals, water and fiber. These are the major components of food that we take every day. Okay, now let's take one by one. As all of you know that these are the components of food. First of all, there is a major classification of food groups. Some of the foods are helping in the bodybuilding foods, they are called as bodybuilding foods.
some of them are protective in nature and another one are giving energy giving foods. Okay, now बॉडी बिल्डिंग फूड्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं उनसे हमारा शरीर बनता है. उसके अंदर एक एग्जाम्पल है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं. प्रोटीन हम जानते हैं देयर आर सो मैनी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, मिल्क, मीट, चिकन और पल्सेस. प्लांट प्रोडक्ट्स में पल्सेस और बाकी मिल्क, मीट, चिकन, दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. और ये सब के सब रिच इन प्रोटीन्स होते हैं. और हम जानते हैं प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है. मसल्स के डेवलपमेंट में, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट में ये हमारे काम आता है. नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फूड्स. वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेनिक एक्टिविटीज सच एज मिनरल्स, विटामिन्स. और ये कहाँ मिलते हैं हमें? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं. ये ट्रेस अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. ये फर्स्ट ग्रुप था. ये सेकंड ग्रुप था फूड का. और तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट हैं. एक है कार्बोहाइड्रेट, अनदर वन इज़ द फैट. आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट हमारा वीट के अंदर पाया जाता है, राइस के अंदर पाया जाता है. तो मोस्टली कॉमनली दे आर कॉल्ड एज सीरियल्स. और फैट्स हम जानते हैं, फैट्स हमारा घी, ऑयल, इन सब चीज़ों के अंदर पाया जाता है. और शुगर जो है वो एक्चुअली वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही पैटर्न है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये टोटल हम फूड ग्रुप्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वंस अगेन लेट्स रिकैपिचुलेट इट. 3 पार्ट में डिवाइड किया. बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स. प्रोटीन is the example of bodybuilding foods. Animal protein, plant proteins. Protective foods, mineral and vitamins. Example, fruits and vegetables. Third one, energy giving foods. Carbohydrate and fats both provide energy to us for day-to-day activities. Example is cereals and the fats or sugar. Okay, now as all of you know that these as we have already draw a simple chart of the different type of food items. Let's take the one by one. First is the protein. सबसे पहले हम प्रोटीन को लेते हैं. प्रोटीन के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं ये हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है. हम इसे बता चुके हैं, ये हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग. इसका मतलब ये हुआ ये बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम में आता है. ठीक है, हम जानते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने देख रखा है. ये हमारे किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है. ये किस में पाया जाता है? मीट में पाया जाता है. ये किस में पाया जाता है? पल्सेस में पाया जाता है. ठीक है, अब ये हमारे किस किस काम आते हैं? ये हमारे आते हैं रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़. ठीक है, अगर हमारे कहीं चोट लग जाए, कोई टिश्यूज़ हमारी वॉर्न हो जाए, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने में इस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. तो दैट्स वाई कहते ही हैं हम कि हमारे मसल्स को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं है, if we don't have protein in our body, cells will be damaged. जो cells हैं वो डैमेज हो जाएंगे, मतलब cells जो होंगे वो काम नहीं करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे हेयर को बनाने में यूज़ करते हैं, नेल्स को में प्रोटीन की यूज़ होती है, इसीलिए इसको कॉमनली हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कह देते हैं. ठीक है, इनको हम इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. अब हम जानते हैं इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं. तो इनके सोर्सेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि ये 2 तरीके से पाए जा सकते हैं. एक एनिमल प्रोटीन हो सकते हैं और प्लांट प्रोटीन हो सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एनिमल प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड्स एग.
another one fish, meat, milk, cheese and pulses. Actually these pulses are not animal protein rich, these are plant protein rich. ओके, ये यहाँ आना चाहिए, बाई मिस्टेक यहाँ आ गया है. अब बाकी fish, meat, milk, cheese, these are all animal protein. Then plant protein rich food includes pulses or beans, or these are beans. Then हमारे पास आता है तीसरा, food rich in protein includes meat, मीट में आता है फिश, एग्स, मिल्क, चीज, नट्स, बीन्स, पीज एटसेट्रा. ये सारे हमारे फूड हैं जो कि रिच हैं प्रोटीन्स के अंदर. तो हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए अपने डाइट के अंदर, इसको हमको इंक्लूड करना चाहिए. तो हम जानते हैं एक टेस्ट है हमारे पास, हमारे सिलेबस में प्रोटीन का टेस्ट है. वो एक्टिविटी में इन द क्लास और प्रैक्टिकल क्लासेस में हम उसको करेंगे उस टेस्ट को. इसके अंदर करते क्या है, सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स लेंगे और उसको जिसको टेस्ट करना है, और इसको हमको सॉलिड में लेना होगा. सबसे पहले हम उसका पेस्ट बनाएंगे. उस जो भी आइटम होगा उसका हम क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे. और उस पेस्ट बनाने के बाद हम उसको पाउडर भी कर सकते हैं. फिर of it or powder it, grind or mash a small quantity of the food item. फिर उसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है. देन हम क्या कर सकते हैं, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करेंगे. हम क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद उसको शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को, और ड्रॉपर के मदद से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ये हमने बनाया हुआ है, ड्रॉपर की मदद से हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन. किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे. जब हम इसको ऐड करेंगे उसके बाद 10 ड्रॉप्स हम कॉस्टिक सोडा का ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसको भी अच्छी तरीके से हिलाएंगे. उसके बाद हम देखेंगे एक कलर चेंज आएगा. अगर वॉयलेट कलर आता है तो हम मान के चलेंगे कि वो, अगर वॉयलेट कलर आया तो हम मान के चलेंगे कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है. और इस तरीके से हम इसको एसर्टेन कर लेंगे कि ये हमारा टेस्ट है प्रोटीन का. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम इसके बाद आगे नेक्स्ट फूड आइटम्स की बात करते हैं. जो कंपोनेंट रहा है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं. ये हमारा क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 एटम से मिलकर बना होता है. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है. ये इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए इसी का यूज़ करते हैं. इसके अंदर अगर हमारे बॉडी में कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल बनना है तो इसी का यूज़ करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही यूज़ करेंगे. फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल या सेल कंपाउंड्स बनना हो तो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है. ठीक, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट की. ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का. फिर इट इज़ स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग बर्न. ये प्रोटीन को बचाता है जलने से, बर्न करने से, डे टू डे एक्टिविटीज़ की. तो इस कारण से वो प्रोटीन बिल्ड और रिपेयर में काम करेगा. इसी तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का भी पार्ट हो सकता है, कुछ हार्मोन्स का पार्ट होता है, एंजाइम्स और जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये यूज़ हो सकता है. इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो कॉमन सोर्सेज हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं. फर्स्ट, जो कॉमन सोर्सेज आर वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिनमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द लेग्यूम्स, जैसे बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, सोयाबीन्स हैं, इन सबों में भी पाया जा सकता है. देन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, फिर राइस, व्हीट, सीरियल्स. एज हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सीरियल्स होते हैं वो हमारे कॉमन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के हमारे डाइट में.
हम सब जब सबसे मोस्ट कॉमन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हम स्टार्च के बारे में। आप सभी जानते हैं स्टार्च के बारे में, स्टार्च हम लोग जानते होंगे। हम कोई भी इसको अगर टेस्ट करना चाहें कि स्टार्च को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं तो मैं बताता हूं आपको। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंदे उसके अंदर डाल देंगे एंड ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। देखते हैं अगर इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो गया आफ्टर एडिंग द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द raw material, then a blue black color indicates the presence of starch in it। that means वो rich in carbohydrate है। तो इस तरीके से हम टेस्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके अंदर किस फूड आइटम में कौन सा मटेरियल है, कंपोनेंट है ना। नेक्स्ट वन वी विल टेक द फैट। फैट के बारे में कॉमनली आप सभी लोग जानते हैं। फैट्स जो होते हैं इट इज़ ए न्यूट्रिएंट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। देन इट एड्स टेस्ट एंड टेक्सचर टू द फूड। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये कुछ बातें हैं फैट्स के बारे में। फैट्स के सोर्सेज भी हम जानते हैं। चलिए उससे पहले हम फैट्स के सोर्सेज जब देखें तो हमें मालूम होगा कि फैट्स जो होते हैं मोस्टली ऑयल में, घी, मिल्क, बटर, एग, मीट, इन सबों के फैट्स में पाए जाते हैं, यानी एनिमल फैट्स में पाए जाते हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स में। ठीक है, जब फैट्स के सोर्सेज देखेंगे तो कॉमन फोर सोर्सेज आपके दिए हुए हैं। ये प्लांट सोर्सेज भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो प्लांट सोर्सेज से जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे ऑयल मिलेगा, सोयाबीन ऑयल मिलेगा, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। दीज आर ऑल sources of fats which derive from plants. Another one which derive from animal is the ghee, milk, butter, cream, meat. They all contain fats. Okay. Now, what is the function of fat? Actually, fat gives us energy. It gives us more energy than carbohydrate. ये हमें बहुत सारी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फैट्स जो होते हैं वो रिच सोर्स तो होते हैं, ज़्यादा एनर्जी तो देते हैं, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो बेटर सोर्स कौन सा हुआ? बेटर सोर्स हुआ कार्बोहाइड्रेट। ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इनसे एनर्जी फ्रीक्वेंटली हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब हम इनके टेस्ट कैसे करते हैं? अब इनके टेस्ट के लिए देखिए, टेस्ट कैसे कर सकते हैं फैट के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उस पेपर को जब हम स्ट्रेट करेंगे और देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। इसके आर पार हमको रोशनी नजर आएगी। आप जानते हैं इस तरह की कंडीशंस उस ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट पास हो सकती है, अगर क्लियरली पास हो तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसमें से क्लियरली पास ना हो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसमें से हमारा इन दोनों के बीच की कंडीशन हो, बहुत अच्छी तरीके से लाइट पास भी ना हो पाए, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कंडीशन कहते हैं। तो इसमें जो होता है वही ट्रांसलूसेंट कंडीशंस पाई जाती हैं। जब हम देखते हैं ऑयली पैच और पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, इसमें ऑयली पैच रहते हैं, उससे पता लग जाता है कि इसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, द फूड आइटम्स may sometimes contain a little water also. So in this way
we will be able to identify which food item is containing fat. Okay, in this way I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया फैट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और वो है हमारे विटामिन्स एंड के बारे में। और ये हमारे ट्रेस अमाउंट में यूज़ होते हैं। ट्रेस अमाउंट यानी बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये यूज़ चाहिए रहती हैं बॉडी में विटामिन्स की। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, लेकिन दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस एंड अलाउ ग्रोथ। बाय द हेल्प ऑफ द विटामिन्स आवर बॉडी ग्रो वेल। बॉडी हमारी क्या करती है, आसानी से ग्रो कर सकती है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो विटामिन्स होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे दे हेल्प इन द डाइजेशन, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, देन मेटाबॉलिज्म। इन सब चीज़ों में इनका यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, विटामिन्स का यूज़ होता है। अब हम जानते हैं हमारे पास एक हेयर इज graph is given, a chart is given about the sources of vitamins. In this chart, different type of vitamins are given: vitamin A, B, C, D, E and K. And apart from this one, here sources are given such as vitamin A, इसके जो source हैं वो हैं egg, milk, carrot और papaya। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, ये देखिए नाइट विजन के लिए ज़रूरी होता है। ग्रोथ एंड प्रमोट हेल्दी स्किन एंड गुड फॉर नाइट विजन। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो यूज़ होते हैं वो हम नाइट विजन के लिए यूज़ करते हैं विटामिन ए। नेक्स्ट इज़ द विटामिन बी। ये हमारे नर्व सेल्स और मसल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, यानी ये नर्वस सिस्टम के लिए कंट्रोल करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एग में, ईस्ट में, लीवर, नट्स एंड टोमेटो। देन थर्ड इज़ द विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में सब लोग जानते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितनी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, जैसे टोमेटो में है, लाइम में है। और इसका आजकल के सेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है बिकॉज इट इंक्रीजेज द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस, और ये हमारे हेल्दी स्किन को भी प्रमोट करता है। तो इम्यूनिटी के लिए ये मस्ट है, आप इसको ही समझिए, विटामिन सी। एंड देन थर्ड वन इज़ द विटामिन डी। ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस, हमारे बॉडी में इसका यूज़ होता है। आप ये समझ लीजिए ये हमारे बोन के मजबूती में ये काम करता है। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये एग में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं, या कॉड लिवर ऑयल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन ए। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये हमारे वेजिटेबल ऑयल, एग, लीवर, मिल्क, पाम ऑयल में पाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द विटामिन के। ये हमारे सनफ्लावर सीड्स और मेज़ में पाए जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको ऐसे कभी हल्का सा चोट लग जाए, कट लग जाए, और जो खून निकलता है, ब्लड होता है, वो अपने आप कुछ देर के बाद रुक जाता है, तो उस प्रोसेस को ही हम क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉट बन जाता है यानी खून का जमना। और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। सो आप ये समझ गए विटामिन्स हैं तो बहुत कम, छोटी छोटी मात्रा में ज़रूरत होते हैं, कम मात्रा में ज़रूरत होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए मस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको समझ के रखिए। नेक्स्ट हम जानते हैं मिनरल्स की बात आती है। ये मिनरल्स भी हमारे पास क्या हैं, ये जो भी मिनरल्स हैं ये हमारे नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है, जिंक एंड फॉस्फोरस। दीज आर ऑल मिनरल्स एंड दे कैटलिस्ट फॉर मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी जो रिएक्शंस होते हैं उनको फास्ट करते हैं। और फिर ये हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी होते हैं इनके, डिफरेंट टाइप के बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनमें ये पाए जाते हैं।
फिर हमारे बॉडी के एसिड बेस और वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करने में इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप मिनरल्स के बारे में पढ़ पाए कि मिनरल्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं। हम जानते हैं कि ये मिनरल्स के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे एनिमल फूड बेस्ट सोर्स होते हैं कैल्शियम, आयरन और जिंक के। देन प्लांट फूड सोर्सेज होती हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के। तो इनके अलग अलग हमारे बॉडी के फूड सोर्सेज होते हैं जो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं प्लांट फूड में बनाना, ये जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनमें हमारा पोटेशियम पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं उनमें मोस्टली यही सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि इन मिनरल्स के अलावा जैसे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले प्रोटीन पढ़ा, हमने एक पढ़ा प्रोटीन, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थ्री, all these components of food: protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals। इन सबों के अलावा एक और चीज़ है जो हमारे बॉडी में सबसे ज़रूरी होती है, एंड दैट इज़ द वाटर। इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का ही एसेंशियल कंपोनेंट है। मेजर पोर्शन जो हमारे बॉडी का है वो वाटर से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है, वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है फूड आइटम्स को। ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एट यूरिन एंड स्वेट। ये हमारे बॉडी से यूरिन और स्वेट के फॉर्म में वेस्ट को निकालने में मदद करता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही मेजर फंक्शन हो गया इसका। हम जानते हैं वाटर के डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से फूड आइटम लें जिनमें हमको वाटर के सोर्सेज मिलते हैं। डायरेक्टली हम वाटर का इनटेक कर सकते हैं एक तो, या फिर हम मिल्क से ले सकते हैं, टी से ले सकते हैं, फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में एट्सेट्रा, और सारी चीज़ों में हम इन सबों को वाटर के सोर्सेज को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर के जब सोर्सेज हो जाएंगे तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं फाइबर्स के बारे में। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्हें मोस्टली हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रफेजेस। इन्हीं को हम रफेज भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ये मेनली हमारा किससे प्रोवाइड होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स से, मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से प्रोवाइड होता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, जितने ये ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। इट डजेंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये बात सही है कि ये कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता हमारे बॉडी को, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है, आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, एड एब्जॉर्ब्स retains water through softer and feces for easy defecation। ये easy defecation के लिए भी हमारे यूज़ करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ये सारे हमारे फूड आइटम्स थे जो हमारे अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सोर्सेज हैं डाइटरी फाइबर्स के, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कौन कौन से हैं। पहले हैं soluble fibers, another one is the insoluble fibers. Insoluble fibers, some fruits, root tubers and certain vegetables or legumes. These all include soluble fibers. ये आसानी से soluble होते हैं। Another one are the insoluble fibers, whole grain foods, wheat and corn, barn, legumes, nuts and seeds. These are all insoluble fibers. ये insoluble fibers होते हैं और हमारे बॉडी के लिए डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आ रहा है समझ में। हम क्या कर सकते हैं,
इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इन डाइटरी फाइबर्स की मदद से आप कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है जिसे आप देख सकते हैं। उसके अंदर आप क्या करेंगे, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। हम लेमन ले लेंगे, ठीक है, हमने क्या लेना है, लेमन। हमने सबसे पहले लेमन लेना है और उसे कट करना है। कट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर बिन कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? ऐसा नहीं होता, उसमें से वाटर रिलीज करता ही करता है। We can see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. So, हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि फूड हमारे किसी भी फूड मटेरियल के अंदर वाटर की क्वांटिटी पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you like or you enjoy the video. If you want regular updates, please like the video and subscribe the channel and press the bell icon. So thanks once again.